پیارے دوستو، عمر یہی کوئی 70 سال ہوگی۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی اولاد بھی نہ تھی جو اس کا سیوا کرتی۔ کنیز، تجھے خوش ہو جانا چاہیے، تیرے نصیب جاگ گئے، تیری شادی شہر کے سب سے امیر ایک جمال الدین شخص سے طے کر دی ہے۔ آج نکاح کے لیے تیار ہو جا، ورنہ اس گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ میری کیا غلطی بھائی ہے، میں جان، یتیم ہوں، میرا پر کیا بوجھ ہوں، قصور میرے ہے؟ ساتھ ظلم نہ کریں۔ کیا میرا یہی بھائی، قصور ہے کہ میں میری کیا یتیم ہوں؟ غلطی ہے، کیا میں امی ابو یتیم ہوں ہوتے پر تو وہ بوجھ میرا ہوں، میرے نکاح ایک ساتھ بوڑھے ظلم نہ بابا سے کریں۔ کرتے؟ یہ کہانی ایک ایسی معصوم یتیم بچی کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی سیوا اور صبر میں گزار دی، اور جب دنیا نے اسے ٹھکرایا تو اللہ نے اسے ایسا نوازا کہ دیکھنے یا والوں کی اللہ مجھ آنکھیں پر پھٹی کی رحم پھٹی رہ فرما، گئیں۔ میں تیری شکر کنیز نام گزار کی ہوں یہ 18 میرے سال کی مولا۔ بچی، جس کے نصیب میں اس کے اپنوں نے 70 سال کا بیمار بوڑھا لکھ دیا تھا۔ سب کو لگا تھا کہ وہ بہت بوڑھا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ یہ کہانی آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی اور آنکھوں میں آنسو لا دے گی۔ آخر کیا لکھا تھا اس بوڑھے کی وصیت میں، جاننے کے لیے آخر تک بنے رہیے گا۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آپ کہتے کے ہیں بغیر کہ میں یتیم کیسے کے سر جیو پر گی؟ ہاتھ پھیرنے سے آپ بھی کے بنا جنت میرا ملتی ہے، کوئی نہیں۔ لیکن اگر اسی یتیم پر ظلم کیا جائے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ داستان ایک کنیز کی جس کی عمر 18 سال تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں 80 سال کے بزرگ جتنا غم اور خاموشی تھی۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب بھی اس کے والد اور والدہ ایک سڑک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے کنیز اپنے بڑے بھائی راشد اور بھابھی سلمیٰ کے رحم و کرم پر تھی۔ بھائی راشد دل کا برا تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنی زبان دراز بیوی کے آگے بالکل بے بس تھا۔ لیکن سلمیٰ ایک ایسی عورت تھی جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اسے لگتا تھا یہ لڑکی ان کے گھر پر ایک بوجھ ہے جو مفت کی روٹیاں توڑتی ہے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی کنیز کی زندگی کی جدوجہد شروع ہو جاتی تھی۔ ابھی سورج نکلا ہی نہیں ہوتا تھا کہ سلمیٰ کی کڑوی آواز پورے گھر میں گونجنے لگتی، ارے او کنیز، ابھی تک سو رہی ہے؟ مہارانی اٹھ، چولہا جلا، میرے بچوں کو اسکول جانا ہے۔ کنیز اپنی پھٹی ہوئی چادر ہٹا دیتی اور یوں یا اللہ مدد کہہ کر اٹھ جاتی۔ کڑاکے کی ٹھنڈ ہوتی یا تپتی گرمی، کنیز کے وہ پورے گھر کا جھاڑو پوچھا کرتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی اور پھر سب کے لیے کھانا بناتی۔ لیکن اتنا سب کرنے کے بعد بھی اسے کھانے کو کیا ملتا؟ رات کی بچی ہوئی روکھی سوکھی روٹی۔ سلمیٰ اپنے بچوں کو تو گھی لگا کر پراٹھے کھلاتی، لیکن کنیز کے سامنے ایک سوکھی روٹی پھینک کر کہتی کہ لے کھا لے اور اللہ کا شکر منا کہ تجھے چھت ملی ہوئی ہے، ورنہ یتیموں کو تو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا۔ کنیز چپ چاپ وہ روٹی اٹھاتی اور اپنے دل میں کہتی، اے میرے مالک، تو سب دیکھ رہا ہے، مجھے صبر دے۔ کنیز اتنی خوبصورت اور نیک دل تھی کہ دیکھنے والے کہتے کہ یہ تو کوئی حور ہے، لیکن اس کے میلے کچیلے کپڑے اور اداس چہرے اس کی خوبصورتی کو چھپا لیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب محلے کے لوگ زبان کی باتیں کرنے لگے تھے کہ راشد بھائی، اب بہن کی شادی کر دو، جوان لڑکی گھر میں بیٹھی ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ باتیں سلمیٰ کے کانوں تک بھی پہنچتی۔ اسے چنتا نہ تھی، بلکہ وہ جہیز کے بارے میں سوچتی تھی کہ اگر اس کی شادی کرنی پڑی تو گھر سے پیسہ جائے گا، دہیج دینا پڑے گا۔ سلمیٰ دن رات اسی ادھیڑ میں رہتی تھی کہ کیسے اس مصیبت سے پیچھا چھڑایا جائے اور جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو۔ تبھی ایک دن اس کے گھر ایک رشتہ آیا۔ رشتہ کنیز کے لانے لیے والی بہت اچھا بڑھیا نے رشتہ آیا ہے، وہ سلمیٰ کے جہیز کی کان میں کچھ رقم بھی ایسا ادا کہا کہ کریے سلمیٰ گے۔ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بڑھیا نے کہا، سلمیٰ بیٹی، شہر کے ایک بڑے جمال الدین صاحب ہے، بہت پیسہ ہے، بڑی کوٹھی میں رہتے ہیں، عمر یہی کوئی 70 سال ہوگی۔ ان کی بیوی کا انتقال بہت سال پہلے ہو گیا تھا، کوئی اولاد بھی نہیں ہے جو ان کی سیوا کرے۔ انہیں ایک جوان بیوی چاہیے جو ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرے، ان کی سیوا کر سکے، انہیں دوا دے سکے۔ انہیں لڑکی کی خوبصورتی یا خاندان سے مطلب نہیں، بس سیوا کرنے والی ہو۔ اور سب سے بڑی بات، وہ جہیز بھی نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ لڑکی والوں کو مہر کی بہت بڑی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ سلمیٰ کا لالچی دماغ تیزی سے چلا۔ 70 سال کا بیمار بوڑھا، اس کا کچھ دن میں ہوا ہو جائے گا، لیکن بعد میں تو رقم اسے مل جائے گی، لیکن خالہ وہ بیمار ہیں تو کتنے دن جئیں گے؟ ارے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، مشکل سے 6 مہینے، یہ سال بھر کے مہمان ہیں، بس انہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ سلمیٰ من ہی من میں سوچے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، کنیز گھر سے دفع ہو جائے گی، جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا اور الٹا سیٹھ جی پیسے دے کر جائیں گے۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ شام کو جب راشد گھر آیا تو سلمیٰ نے اسے بتایا تو وہ دنگ رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو سلمیٰ؟ کنیز ابھی صرف 18 سال کی ہے، وہ پھول جیسی بچی ہے، اور سیٹھ جمال الدین 70 سال کے، وہ تو اس کی دادا کی عمر کے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں اپنی معصوم بہن کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگی سلمیٰ، تو کیا اپنی پوری زندگی اپنی بہن کو اپنی چھاتی پر بٹھا کر رہو گے؟ تمہارے پاس ہے اتنا پیسہ کہ کسی جوان لڑکے سے اس کی شادی کر سکو؟ آج کے زمانے میں بنا جہیز کے تو کوئی لڑکی بھی نہیں لے جاتا، اور سیٹھ جی اپنا پیسہ دے کر لیں گے۔ جب بچوں کا
भविष्य बन जाएगा। कनीज़ वो वहाँ राज करेगी, हवेली की मालकिन बनेगी, हवेली की मालकिन बन जाएगी। राशिद कमज़ोर दिल का आदमी था। बीवी की जिद और रोज़ रोज़ के झगड़ों के आगे इसने घुटने टेक दिए। अगले दिन कनीज़ को ये फरमान सुना तुम्हारे दिया लिए गया। एक अमीर सलमान बड़े मिठाई बजर का का रिश्ता डब्बा कनीज़ आया के राज आगे रखा और करोगी। बोला, सलमा ने रखा और बोली, खुश हो जाओ, तेरे नसीब जाग गए। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर आदमी से हो रही है, जिनका नाम सेठ जमालुद्दीन है। नाम तो तुमने सुना होगा। वो जानती थी कि वो बहुत बूढ़े और बीमार है। इसने अपने भाई की तरफ देखा। भाईजान, क्या मेरा यही कसूर है कि मैं यतीम हूँ? भाई, अम्मी अब्बू मेरी होते क्या तो क्या गलती है, मैं मेरा निकाह यतीम एक हूँ, बूढ़े पर से बोझ करते? हूँ, और वहाँ मेरे से साथ उठकर जुल्म ना करें। चला गया उसका भाई। राशिद सलमा ने कनीज़ का हाथ झटकते हुए कहा, जाबिर, लड़की नाटक मत कर। हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। अब तेरा फ़र्ज़ है कि हमारे बारे में सोच। निकाह के लिए तैयार हो जा, वरना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कनीज़ के पास कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी रात अल्लाह से रोती रही, फरियाद करती रही कि या इलाहुल आलमीन, अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है तो मुझे इसे सहने की ताकत दे। मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। निकाह का दिन आया। ये कोई शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की मैयत उठने वाली हो। ना कोई ढोल, न शहनाई। कनीज़ को लाल जोड़ा पहनाया गया जो किसी पुरानी संदूक से निकाला गया था। सेठ जमालुद्दीन भी आए, लेकिन दूल्हा बनकर नहीं, बल्कि एक मरीज़ की तरह। वो कार से बड़ी मुश्किल से उतरे और अगली सीट पर जमालुद्दीन भी हाथ में लाठी लिए बैठे थे और खांस रहे थे। इनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और बाल सफ़ेद रुई जैसे थे। महल्ले की औरतें छतों से झांक रही थी और बातें बना रही थी। हाय बेचारी कनीज़, कैसी फूटी किस्मत पाई है, जवानी में ही बूढ़ा देख लिया। निकाह पढ़ाए गए। कनीज़ ने भारी आवाज़ में कहा, कबूल है, बल्कि अपनी इस कड़वी किस्मत को कहा। निकाह के बाद सेठ जी ने वादे के मुताबिक एक मोटी रकम राशिद के हाथ में थमा दी। सलमा की आंखें पैसे को देखकर चमक उठी। उसने कनीज़ को गले भी नहीं लगाया, बस इतना कहा कि जा अपने घर जा, हमें भूल जा। कनीज़ अपनी नम आंखों के साथ खड़ी रह गई। बस इतना कहा, आप अपने घर में इस कनीज़ को भूल जाएं। और फिर अपनी नम आंखों के साथ इस आलीशान कार में बैठ गए। गाड़ी धूल उड़ाती हुई शहर की तरफ चल पड़ी। सेठ जमालुद्दीन की हवेली वाकई बहुत बड़ी थी, लेकिन वहाँ खामोशी का राज था। चारों तरफ नौकर चाकर थे, लेकिन कोई अपना ना था। सेठ जी को उसके कमरे में ले जाया गया। कनीज़ भी डरते डरते अंदर गई। कमरा दवाइयों की गंध से भरा हुआ था। सेठ जमालुद्दीन पलंग पर लेट गए और फिर कनीज़ ने अपनी घबराहट को दबाया। जल्दी से पानी का गिलास भर कर उन्हें दिया। सेठ जी ने पानी पिया, कनीज़ की तरफ देखा। इनकी आंखों में हवस नहीं, बल्कि एक लाचारगी और दुख था। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी है। मेरी उम्र तुम्हारे दादा जैसी है, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास दौलत बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो मुझे दवा भी दे सके, जो 2 घड़ी बैठ कर मेरे पास बातें कर सके। लेकिन टीवी का दर्जा तो शायद ना मैं तुम्हें बीवी का दर्जा तो शायद ना दे सकूं, लेकिन तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं दूंगा। मैं तुमसे निकाह इसलिए किया कि तुम्हें बीवी का दुख ना सुख दे सकूं। कनीज़ का दिल ये सुनकर पिसज गया। उसके दिल से डर निकल गया और रहम आ गया। उसने अपना आप उसके हवाले बातों से करते हुए कहा कि आप मेरे सरताज हैं, मेरा आपसे निकाह हुआ है, मैंने आपकी सेवा करना है और अब यही मेरा धर्म है। और इस दुनिया में आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगी। उस दिन से कनीज़ की एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। सुबह फजर से उठती, नमाज़ पढ़ती और फिर जी जान से सेवा में लग जाती। उन्हें अपने हाथों से नहलाती, उन्हें वक्त पर दवा देती, उनके लिए नरम खाना बनाती जो वो आसानी से खा सके। सेठ जी को चलने फिरने में दिक्कत थी। रात भर जब सेठ जी को खांसी आती, वो सो नहीं पाते, तो कनीज़ इनके सराहने बैठकर इनके सर पैर दबाती और कुरान की आयतें पढ़कर इन पर दम करती। हवेली के नौकर भी हैरान थे। उन्होंने देखा था कि कैसे सेठ जी के रिश्तेदार आते थे तो सिर्फ जायदाद की बातें करते थे, लेकिन ये जो लड़की इसके घर की मालकिन बन सकती थी, वो एक नौकरानी से भी ज़्यादा सेवा कर रही थी। कनीज़ ने कभी नए कपड़े नहीं मांगे, कभी गहनों की फरमाइश नहीं की और बस जी जान से सेठ की खिदमत में लगी रहती थी। सेठ जमालुद्दीन की सेहत में कनीज़ की सेवा से थोड़ा सुधार आने लगा। उनके चेहरे पर थोड़ी रौनक आ गई और अक्सर कनीज़ से कहते, कनीज़ तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो, मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जवानी कैद कर ली। ये तो मेरा नसीब है कि तुम मुझे मिल गई हो। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, मेरी खुशकिस्मती है। और इधर सलमा को जब पता चला कि सेठ अभी मरे नहीं, जिंदा हैं, तो इसे जलन होने लगी। वो सोच रही थी कि कनीज़ वहाँ मालकिन बनकर राज कर रही होगी। एक दिन सलमा और राशिद हवेली पहुँचे। उनका मकसद कनीज़ का हाल जानना नहीं, बल्कि ये देखना था कि कुछ और मिल सकता है क्या। जब उन्होंने कनीज़ को देखा तो हैरान रह गए। वो सादा से कपड़ों में थी और सेठ जी के पैर दबा रही थी। अरे कनीज़, हमने तो सोचा तू रानी बनकर बैठी होगी, तू तो यहाँ भी नौकरानी बनी हुई है। भाभी, ये शौहर है, इनकी सेवा ही मेरी जन्नत है। सेठ जमालुद्दीन ने सलमा की बातें सुन ली थी। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने भांप लिया कि ये औरत कितनी लालची है। और फिर
वक्त गुजरता रहा, 2 साल बीत गए। डॉक्टर ने 6 महीने का कहा था, लेकिन कनीज़ की सेवा ने सेठ जी को 2 साल और दे दिए। लेकिन बुढ़ापा और बीमारी आखिर जीतती गई। एक रात सेठ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। कनीज़ घबरा गई, से डॉक्टर को बुलाया। चलो, सेठ जी ने इशारे से कनीज़ को बुलाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कनीज़ का हाथ अपने कमज़ोर हाथों में लिया और कहा, कनीज़, मैं जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, सिर्फ सेवा करवाई है। लोग मुझे बुरा कहेंगे, लेकिन अल्लाह जानता है मैंने तुम्हें अपनी बेटी से ज़्यादा माना है, मुझे माफ़ कर देना। अपनी बीवी से ज़्यादा माना है। तो वो कहने लगी कि नहीं, आपने मुझे छत दी, इज़्ज़त दी, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। सेठ ने कनीज़ के सर पर हाथ रखा, कलमा पढ़ते हुए अपनी आखिरी ज़िंदगी की तरफ रवाना हो गया। कनीज़ का रोकर बुरा हाल था कि अब दुनिया में फिर से बिल्कुल अकेली हो गई थी। खबर मिलते ही सेठ जी के दूर दूर के रिश्तेदार, जो कभी हाल पूछने भी नहीं आते थे, सब हवेली में जमा हो रहे थे। हर किसी की नज़र हवेली और तिजोरी पर थी। सलमा और राशिद भी दौड़े दौड़े आए। सलमा के चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी, जिससे वो झूठे आंसुओं के पीछे छुपा रही थी। वो सोच रही थी, चलो, बुढ़ा मर गया, अब कनीज़ को वापस ले जाएंगे, लेकिन हिस्सा तो मिलेगा ही। जनाजा उठा, दफन कफन हुआ, कनीज़ इद्दत में बैठ गई। 3 दिन बाद सेठ जी के वकील साहब हवेली आए। उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बड़े हाल में बुलाया। वहाँ सेठ जी के भतीजे, भांजे और सलमा, राशिद सब मौजूद थे। सबकी निगाहें वकील के हाथ में मौजूद फाइल पर थीं, जिसमें ज़रूर कुछ न कुछ तो था, जिसमें से सबको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मिलना था। वकील साहब ने गला साफ़ किया और बोलना शुरू किया। मरहूम साहब ने अपनी कोई होशो-हवास में ही ये वसीयत लिख कर गए हैं। उन्होंने सोचा कि आखिरी वक्त मिला। वकील ने चश्मा ठीक किया और वसीयतनामा पढ़ना शुरू किया। मेरे तमाम रिश्तेदार जो आज यहाँ मौजूद हैं, मैं जानता हूँ कि सब मेरी वसीयत पढ़ी जा रही है। सब मेरी मैयत पर आए थे, मेरी दौलत पर आए थे, लेकिन मैं बीमार था, तड़प रहा था। जब मुझे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं आया, तो इसी वजह से मैं अपने ख़ानदान के किसी भी शख्स को अपनी जायदाद का एक फूटी कौड़ा भी नहीं दे रहा हूँ। माहौल में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सलमा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। तो फिर किससे मिलेगा सब कुछ? वकील ने आगे पढ़ा। मेरी ज़िंदगी की आखिरी 2 साल जिस शख्स ने मेरी औलाद बनकर, मेरी माँ बनकर सेवा की, जिसने मेरे ज़ख्म धोए, जिसने कभी मुझसे कुछ ना मांगा, वो मेरी बीवी है। लोग इसे मेरी बीवी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो रहमत का फरिश्ता थी। इसलिए मैं होशो हवास में अपनी सारी जायदाद, हवेली, शहर की 50 दुकानें, फैक्ट्री और बैंक का तमाम पैसा अपनी बीवी कनीज़ के नाम करता हूँ। आज से शहर की आधी ज़मीन की मलकीनों की वारिस कनीज़ है। ये सुनते ही जैसे वहाँ बम फट गया। सलमा का मुँह खुला का खुला रह गया। राशिद को यकीन नहीं आ रहा था कि रिश्तेदारों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और वो कनीज़ जिसे वो कल तक बेचारी कह रहे थे, एक ही पल में शहर की सबसे अमीर औरत बन गई थी। वकील साहब ने कनीज़ की तरफ देखा। वो रो रही थी, सर झुकाए बैठी थी, एक कोने में सिमटी हुई। इसे दौलत की कोई खुशी नहीं थी, इसने तो बस अपने साथी के जाने का गम था, जिसने इसे इज्जत दी। रिश्तेदार शोर मचाने लगे, ये वसीयत झूठी है, शोर मचाने लगे तो कि ये औरत भी झूठी है, इस औरत ने बूढ़े को फंसा लिया। लेकिन वकील ने कहा ये वसीयत रजिस्टर्ड है, और सेठ जी ने वीडियो भी बनाई है। लेकिन वकील ने कहा वसीयत रजिस्टर्ड है और रिकॉर्डिंग भी करवाई थी वीडियो की, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हार मानकर रिश्तेदार पैर छटकते चले गए। अब बच्चे थे सलमा और राशिद। सलमा का रंग एकदम बदल गया। वो दौड़कर कनीज़ के पास आई, इसके पैरों में गिर पड़ी। मेरी बहन, मेरी बच्ची, मुझे पता था तेरी किस्मत में राज होगा। देख, अब तू अकेली इतनी दौलत कैसे संभाल पाएगी? तू घर चल, मैं और तेरे भाई जान है ना, हम संभाल लेंगे। हीरे जैसी है तू। तो उसने जल्दी से अपने पैर कनीज़ ने खींचे। उसने अपनी नम आँखों के से सलमा की तरफ देखा। आज कनीज़ की आंखों में बहुत डर नहीं था जो पहले हुआ करता था, एक अजीब सा सुकून और ताकत। इसने धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, वहाँ पे जब मुझे एक रोटी की ज़रूरत थी तब आपने मुझे ताने दिए, जब मुझे सहारे की ज़रूरत थी वो आप मुझे 70 साल के बीमार शख्स को बेच दिया। आप तो मुझे मौत के मुँह में धकेला था। ये तो मेरा अल्लाह था जिसने इस आग को मेरे लिए गुलजार बना दिया। सलमा गिड़गिड़ाने लगी, माफ़ कर दे, आखिर खून का रिश्ता है। कनीज़ ने राशिद की तरफ देखा जो शर्म से सर झुकाए खड़ा था। खून का रिश्ता तो उसी दिन ख़त्म हो गया था भाईजान, जिस दिन आपने चंद रुपयों के लिए अपनी बहन का सौदा किया था। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है जी, मेरे लिए सेठ ने वकील छोड़े हैं जो सब संभाल लेंगे, आप लोग जा सकते हैं। सलमान ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कनीज़ ने उन्हें हवेली से जाने को कह दिया। वो जानती थी कि अगर इसने दोबारा इन लोगों को मुंह लगा लिया तो ये फिर इसे वापस आ डसेंगे। सलमा और राशिद
रोते पछताते हुए इस आलीशान हवेली से बाहर निकले जो उन्हें दौलत मिल सकती थी। उनके लालच और जुल्म ने उसे हमेशा के लिए इनसे दूर कर दिया। कनीज़ ने इस दौलत का इस्तेमाल ऐशो आराम के लिए नहीं किया। इसने सेठ जमालुद्दीन के नाम पर एक बड़ा अस्पताल और यतीम खाना खोला। वो यतीम बच्चों की शादी करवाती, बेवाओं की मदद करती। लोग उसे कनीज़ 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 कहकर पुकार रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी चालाकी क्यों न कर ले, तकदीर का लिखा जो होता है वो दूसरों के लिए जो गड़क होता है वो खुद इसमें गिरता है। और जो सब्र करता है और अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे ऐसी जगह से अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। कनीज़ ने सब्र किया, सेवा की, और अल्लाह ने इसे फ़र्श से अर्श पर पहुँचा दिया। हमें भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि अगर कोई मुश्किल वक्त आ भी जाए तो हम